Okay, I'm going to start. Previous lectures we have studied about what is mass, what is density, what is unit weight, what is the difference between mass and weight, what is the difference between density and unit weight, right? In previous lecture we have studied what is mass, what is weight, what is density, what is unit weight, what is the difference between mass and weight, what is the difference between density and unit weight, where it will be useful to us. क्लियर? ये सब समझाया था लास्ट लेक्चर में, याद है कि भूल गया? ओके, मैं पूछूंगा बाद में, अभी जाने देता हूँ. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिट वेट एंड द डेंसिटी? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यूनिट वेट एंड डेंसिटी. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, soil phase. Soil deposit compress and accumulate a solid particle plus with a void space between the particles. Void means जहाँ पे भी soil particles, एक soil sample आप लोगों ने लिया suppose. Let's take an example of next. This is a soil sample. Okay. This is the part of the phase diagram, soil phase diagram. This is solid part, this is a water part, or sometimes some air is also there. A indicate air, S indicates solid, and dash dash indicates the water present. Same soil sample is actual. You have taken this soil sample. In this, you have seen some air, water, and solid part of this. Okay, clear? समझ में नहीं यार, हिंदी में बोलता हूँ. आपने एक सॉइल सैंपल लिया इस तरह से. ओके, इसके अंदर आपके पास in this soil sample you have solid particles, liquid particles, and air particles. But besides of solids, the remaining part is called as void. Void means होल रह जाता है, जिसके होल के अंदर पानी रहता है या फिर हवा रहती है. ये सॉलिड पार्टिकल्स आपने लिया, सॉलिड पार्टिकल, इसके अंदर कितनी जगह पे हवा है और कितना पोर्शन पानी है. How much portion of water is there and how much portion of air is there, that is called as void. Okay, void किसको बोलते हैं? voids means हवा रह जाती है या फिर खाली जगह रहती है. एक पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल्स अपने सॉलिड पार्टिकल्स के अलावा जो भी पोर्शन रहता है that is called as voids. clear? Okay, the void space are partially or completely filled with water or other liquid. Void space cannot occupied by the fluid are filled with fluid are filled with air or other gases. Hence, soil deposits are reference to three-phase system, that is solid plus liquid plus gas. वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल. कहाँ पे रहता है सॉइल, उस पर डिपेंड करेगा. नाउ दिस इज द थ्री फेज डायग्राम. एक्चुअल जो हम लोग ने सॉइल सैंपल लिया, ये एक्चुअल थ्री फेज डायग्राम है, जिसमें सॉलिड पार्ट हम लोग ने अलग किया, वाटर पार्ट अलग किया, एयर पार्ट अलग किया, लिक्विड पार्ट अलग किया, गैस पार्ट अलग किया. ये थ्री फेज डायग्राम बोला जाता है. कुछ सॉइल ऐसे रहते हैं जिसके अंदर टोटली वाटर रहता है, एयर की जगह ही नहीं रहती. ऐसा कौन सा सॉइल रहता है? मेनली सी शोर के पास रहता है, जिसके अंदर पानी ही रहता है, खाली जगह है, एयर नहीं रह सकती. दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. व्हाट इट्स कॉल्ड एज fully saturated soil. The voids of air is filled with water. It is called as fully saturated soil. Okay, that in that
the phase will become two phase only, solid and liquid. Okay, there is possibility of another cases. Water के जगह पे only air will be there. Instead of water, there will be only air. That is also called as two phase, but it's called as dry soil. ओवन ड्राई यानी ओवन में रख देते तो पूरा वाटर इवापोरेट हो जाएगा. और in dry season, summer season, the soil will become dry soil. There is no portion of water. There is no portion of water on surface soil, mainly on surface soil. That is called as two phase or dry soil. Two phase of dry soil or oven dried soil sample. Okay. In oven dried soil sample, there are only two phase, solid and air. In fully saturated, there are two phase only, solid and liquid. Remember this. Fully saturated means there is no percentage of air in the soil particle. Okay. Now, for the purpose of study and analysis, it is convenient to represent the soil by a phase diagram, with the part of the diagram representing the solid particles representing water or a liquid, and another particles are air and gas. VV means volume of voids. VT means volume of total volume. This is called as total volume. If we take a particles, if we separate it in the phase diagram, solid, water and air, or solid, liquid and gas. Okay. So this side I am indicating that total volume of soil particle is this much. Okay. VT means total volume. Over here VS means volume of solids. How much volume of solids are available in the soil particle. VV means volume of voids. How much volume of voids are available. Volume of voids. How much volume of voids are available. Next, VW volume of water. VR volume of air. How much volume of air available in the soil particle. On another side, I am showing that this is the total weight of a soil particle. WS means weight of solids. What is the weight of solids? Only solids, not water. I am considering WW means weight of water. How much amount of weight are available in the soil particle. WA is equals to 0. Weight of air must be equals to 0 because can you tell anyone why WA is equals to 0? Air એટલે કેમ air નો weight नहीं होई. एयर का वेट नहीं रहता है. होता है ना, एयर का भी वेट रहता है. आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 8, 9, 10th या 11, 12th में. नहीं, यहाँ पे तीनों फेज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. सेकंड फेज के हिसाब से वो बाद में चलेंगे. अभी थ्री फेज के हिसाब से चल रहे हैं. यहाँ पे वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, वही पूछ रहा हूँ बस, और कुछ. वेट तो रहता है ना एयर का. अगर आप किसी ढक्कन के अंदर रखोगे कुछ तो वेट लगेगा ना, क्या नहीं लगता है. पहली बात, यहाँ पे वेट बोला है. एयर का मास कंसीडर होता है, वेट कंसीडर 0 हो जाता है. एयर का सॉरी वेट होता है लेकिन मास 0 रहता है. सॉरी, मास एयर का 0 रहता है, वेट होता है लेकिन मास 0 होता है, तो वेट भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा. वाटर का मास रहता है, उसकी वजह से उसका वेट आता है. सॉलिड का भी मास रहता है, उसकी वजह से उसका वेट आता है. अभी यहाँ पे जो एयर का मास रहता है, जो मास होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर से कितना लाइट है कि वेटेड है, एयर से हैवी है कि वेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा. वो हवा में रहेगा या नीचे चला जाएगा. अगर वो एयर के हवा में रहेगा, एयर के कंपेयर में रहेगा, वो 0 रहेगा. लेकिन एयर से लाइट होगा उसका वेट, कोई भी पार्टिकल का, तो वो
फ्लो रहता रहता है, जैसे फीदर रहता है उसका वेट एयर से कम रहता है, इसीलिए वो फ्लोट यानी हवा में घूमता रहता है। अभी वाटर का एयर से ज्यादा, इसीलिए वो डाउनवर्ड में एक ही जगह पे रहता है, डाउनवर्ड टाइप में। सॉलिड का भी एयर से ज्यादा इसीलिए। और हम लोग डेटम लाइन यहाँ पर जीरो एयर को पकड़ते हैं, डेटम वहां पे जीरो पकड़ते हैं, बाकी का माइनस में चला जाता है या फिर प्लस में कंसिडर। क्लियर नाउ क्यों जीरो रहता है? क्योंकि डेट इज अ डेटम लाइन, वहां से हम एयर के कंपेयर में करते हैं कि एयर से ज्यादा है कि कम है, होता है लेकिन एयर से ज्यादा है कि कम है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्लियर? एक्चुअल में वेट सबका अलग अलग रहता है, एयर का भी वेट रहता है, इसका भी वेट रहता है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं 5 kg 3 kg, वो कंपेयर टू एयर 5 kg ज्यादा है। एक्चुअल वेट नहीं लिखते, एब्सोल्यूट वेट नहीं लिखते। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एयर को ही के साथ कंपेयर करने वाले हैं, तो दैट विल बिकम जीरो। ओके, क्लियर? ओके, इसीलिए जीरो लिखना पड़ता है। याद नहीं रहेगा तो चलेगा, ये शायद ही वाइवा में पूछ सकते तो पूछ सकते, इनकेस आएगा तो। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया। वेट क्यों जीरो लिखते हैं? क्योंकि हम लोग विथ कंपेयर टू एयर कंसिडरिंग द अदर वेट। ओके, ओके ना, WS means weight of solid, how much amount of weight of solid available in that particle, how much amount of water, weight of water available, what is the total weight. Okay, this is the diagram. ओके ये मैं प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। वही डायग्राम यहाँ पे अलग से आपको दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है। यहाँ पे इन प्रेजेंट ऑफ मास दिखा है, वेट की जगह पे यहाँ पे मास दिखा है। डेंसिटी दी है, density of water, density of solid, volume of water, volume of air, volume of void. VV means volume of void. VT means total volume. Okay. यहाँ पे एक मिनट, वही 3 फेज डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, एक्चुअली डायग्राम था वो, क्योंकि हम लोग को कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानना पड़ेगा पहले। व्हाट इज मीन बाय वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सब प्राइमरी है। दिस इज ऑल द प्राइमरी ऑफ द टू नो अबाउट द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, इस पे से पता चल जाएगा सॉइल पार्टिकल्स हाउ इट इज गुड, इट इज बैड, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है व्हाट इज द सॉइल पार्टिकल्स, हाउ इट बिहेव। उससे पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ वॉइड रेशियो, विद द हेल्प ऑफ पोरोसिटी, विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, विद द हेल्प ऑफ वाटर कंटेंट, ड्राई यूनिट, ये सब के बारे में बताता हूँ एक एक करके। ओके, void ratio, it is the ratio of volume of voids to the volume of solids. void ratio क्या है? volume of voids to the volume of solids, यानी इन दोनों का रेशियो। this is the volume of voids to the volume of solids. Clear? It is what is the void ratio? It is the ratio of volume of voids to the volume of solids. Clear? That is called as void ratio. Next, porosity. पोरोसिटी इसका सॉरी वॉइड रेशियो का सिंबल है स्मॉल ई। वॉइड रेशियो का सिंबल है स्मॉल ई, ये याद रखना। इनटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वॉइड रेशियो का परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते। ओके,
परसेंटेज में निकालते नहीं है, परसेंटेज में करना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्लियर। वाइड रेशियो इंडिकेट करता है सॉलिड के सामने voids, वॉल्यूम ऑफ voids कितना रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के सामने हाउ मच अमाउंट ऑफ voids आर अवेलेबल इन द सॉइल सैंपल, इट इंडिकेट्स द voids रेशियो। क्लियर। नेम पे से पता चलता है इट इज द रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो है सॉलिड बिटवीन द सॉलिड्स टू द voids। क्लियर। ओके नेक्स्ट पोरोसिटी, सुनाई दे रहा है, पीपीटी दिखाई दे रही है ना। ओके ओके पोरोसिटी, पोरोसिटी मीन्स वो परसेंटेज में निकाली जाती है, इट्स एन, उसका क्या है सिंबल एन, और परसेंटेज में निकाला जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड सेम है, लेकिन इट रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, और नॉट ओनली सॉलिड्स, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वीवी डिवाइड बाय वीटी, यहाँ पे वीवी डिवाइड बाय वीएस, वीवी डिवाइड बाय वीटी इनटू 100 into 100। clear। porosity means volume of voids to the volume of soil sample, total volume of soil sample, यानी total soil sample के अंदर volume of voids कितने हैं, ऊपर में था volume of voids डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के सामने वॉल्यूम ऑफ voids कितने हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ voids कितने, दैट इज द कॉल्ड एज पोरोसिटी। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आता है, वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे VVA कॉमन है, वी कैन फाइंड आउट सम रिलेशनशिप बिटवीन E एंड N। ओके वो बाद में बताता हूँ कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट होते हैं। ओके नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर आर अवेलेबल इन द सॉइल सैंपल, whether it is fully dried, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन से पता चलता है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है then it is fully saturated, if degree of saturation is 0 then it is fully dried sample। कैसे, degree of saturation means total volume of voids contains water divided by total volume of voids, means VW divided by VV, वॉल्यूम ऑफ voids इन वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ voids, यानी वॉल्यूम ऑफ voids के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर वॉल्यूम ऑफ 100% रहेगा देन VV इक्वल्स टू VW, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, 100% रहेगा, यानी ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू VV, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी नॉट दैट, दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। अगर VA 100% रहेगा, VV इक्वल्स टू VV और VA इक्वल्स टू VV, देन WV इक्वल्स टू 0, यानी ये WV 0 रहेगा, देन इट विल बी ड्राइड सैंपल, ये पूरा ड्राई हो जाएगा। क्लियर। हेलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज इंफॉर्म कर देना। क्लियर। एक मिनट ड्राई वाला समझाता हूँ, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी समझ में आ गया। ओके ओके वो क्लियर हो गया, लेकिन ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाला समझ में नहीं है। ओके डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द, उसको एस में इंडिकेट करता है और परसेंटेज में आता है, वो क्लियर हो गया। अभी उसका फॉर्मूला क्या है, VW यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द सॉइल सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ voids, हाउ मच अमाउंट ऑफ voids आर अवेलेबल इन द सॉइल सैंपल, इन दोनों का रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ voids, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ void containing water, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ voids into 100। अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कब रहेगा, जब वाटर फुल ऑफ voids से भरा होगा, यानी पानी अंदर फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, तब भी वॉल्यूम ऑफ वाटर voids इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा।
VB equals to VW when it is fully saturated, or when it is fully dry, then there will be no presence of volume of water, then it is called as dry. Okay, नेक्स्ट, क्लियर हो गया? ड्राई इसलिए बोलते हैं जहां पे सिर्फ हवा रहती है, वॉइड्स के अंदर हवा रहेगी, ये वॉइड्स जो वी लिखा है ये पोर्शन में, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, अगर ये फुल्ली वाटर रहेगा देन 100% सेचुरेशन रहेगा, अगर ये फुल्ली ड्राई रहेगा देन 0% सेचुरेशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई सैंपल, और फुल्ली वाटर रहेगा तो फुल्ली सेचुरेटेड रहेगा। क्लियर? હવે એર રે તે કેવી રીતના ખબર પડે? ઓકે, ગુડ क्वेश्चन। अभी ये सॉइल सैंपल है आपका, ओके क्लियर? ये सॉइल सैंपल दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, आप बाहर भी जाओगे अभी तो शायद फुल्ली सैचुरेटेड शायद ही मिलेगा, ड्राई वाला भी मिलेगा, दोनों ये सॉइल सैंपल मिलेगा, कोई भी एक सॉइल सैंपल लोगे हाथ में पकड़ोगे, उसका वेट करोगे, अभी सॉलिड का वेट निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकालना है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, उससे वॉल्यूम पता चले। अभी आपको वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे पता चले, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे पता चले? अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है? डेंसिटी ऑफ वाटर वो फिक्स रहती है, वो चेंजेस नहीं होती कभी भी। वो कितनी रहती है डेंसिटी ऑफ वाटर? मैंने लिखा था, योर यूनिट वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये फिक्स रहता है, या यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको ये पता चल जाता है। क्लियर? डेंसिटी आपको पता है वाटर की 9.81 या फिर 10 पकड़ते, नॉर्मली 10 पकड़ते। ओके, अभी इसका वेट निकालोगे बराबर, पहले डायरेक्टली आप वेट निकालोगे, सपोज 100 kg 100 ग्राम आया इसका, ओके 100 ग्राम आया इसका वेट, मैंने 1000 लिख दिया, सपोज इसका वेट 100 ग्राम आया, अभी इसको ओवन में रख दोगे, कहाँ पे रखोगे? ओवन के अंदर रखोगे फॉर 24 आवर्स, फिर बाद में आपने वेट निकाल के वेट किया, नियर अबाउट 80 आया, 80 या 75, सपोज 75 ग्राम है, 75 ग्राम आया वेट इसका। हाँ, तो यानी 75 ग्राम आया वेट, यानी 100 में से 75 ग्राम कम हो गया। सेम सैंपल को आपने सिर्फ ओवन में रखा था, किसमें रखा था? ओवन के अंदर। ओवन के अंदर क्या होता है? वाटर इवापोरेट हो जाएगा। क्लियर? कितना वेट और वाटर इवापोरेट हो गया? 25 ग्राम वाटर अंदर था, वेट ऑफ वाटर मिल गया आपको। हेलो हेलो, हाँ वेट ऑफ वाटर मिल गया। अब वेट ऑफ वाटर से आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, वेट मिल गया तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने आपको, तो उसके लिए प्रोसेस है, इसको कुछ सैंपल टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, और जैसे ही आप उसका वेट ऑफ सॉलिड्स निकालोगे, वेट ऑफ सॉलिड्स आपको मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स मिल गया अपने को 75 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड्स में मिल गया उसका, उसका वॉल्यूम सिर्फ निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। उसकी प्रोसेस है अलग अलग, डेंसिटी मिल जाने के बाद उसका वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा तो वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकेंगे। वो बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं।
किसी को वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ voids और वॉल्यूम ऑफ एयर. वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से बचा का कौन सा, वॉल्यूम ऑफ एयर ही बचेगा. ओके और कुछ नहीं बचेगा, ये तीनों आपको मिल जाएगा. टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, बचेगा कौन सा, वॉल्यूम ऑफ एयर. क्लियर. ध्रुविक, आई थिंक ध्रुविक ने क्वेश्चन पूछा था. लगेगा तो 20 मिनट्स का डाउट सेशन रखा है, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके दोपहर के बाद 2 बजे के बाद शायद डाउट सेशन रखा है ना, 2 बजे शायद मैं वापस आऊंगा, लिंक ऑन करूंगा तो वापस से आ जाना, जो भी डाउट है वो रिगार्डिंग पूछ लूंगा. नेक्स्ट, वाटर कंटेन. वाटर कंटेन स्मॉल w परसेंटेज में कहला जाता है. नाउ रिगार्डिंग वॉल्यूम पता चल गया है, अभी वेट रिगार्डिंग रेशियोज. वेट रेशियो, ये वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज था, अभी वेट रेशियो. वेट रेशियो में फर्स्ट वाटर कंटेन, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन इन द सॉइल सैंपल. वो कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय W डिवाइड बाय WS इनटू 100. इसका वेट डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड. It is the ratio of weight of water to the weight of solids present in the soil multiplied by in terms of percentage, that is called as water content. Clear. Next, unit टाइम हो गया, 15 मिनट बाकी है ना. ओके तो कवर हो जाएगा. ड्राई यूनिट वेट. Dry unit weight means weight of soil solids divided by total volume of soil. Unit weight means weight upon volume होने वाला है, लेकिन dry यानी only weight of solids, not weight of solids and water. Only weight of solids divided by total volume, that is called as dry unit weight. Unit weight में के ऊपर का weight क्या आ जाएगा, total weight of soil divided by total volume of soil. लेकिन dry unit weight में weight of solids divided by total volume, WS divided by VT. Clear. Now next, bulk or moist unit weight or unit weight of a soil sample, that is total weight of soil divided by total volume of soil, that is bulk weight or total or moist unit weight. That is called as gamma, that is called as gamma D. Okay, gamma D, gamma equals, gamma is the weight of solids divided by volume of soil. Gamma D means weight of solids divided by total volume, and gamma means weight of soil sample divided by weight of, sorry, divided by volume of soil. That is called as gamma, and this is called as gamma D. Next, saturated unit weight. Saturated unit weight means यहाँ consideration they have considered, we have to consider that saturated weight S equals to 100%, VA equals to 0. Same weight of solids plus weight of water divided by total volume. यहाँ पे weight of air equal to 0 रहता है. ये दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन while considering saturated unit weight, it means the soil, the volume of voids are fully saturated, are filled with water only. Over here volume of air is also there, over here volume of air is not available. Clear. That is called as saturated unit weight. Saturated unit weight का WS plus WW divided by VT, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस इज दिस कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ voids is fully, volume of voids is consisting of volume of air, and over here volume of void does not consider volume of air. This is the basic difference. इन क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, इट मींस
volume of air is equals to 0 and volume of water equals to volume of voids. Clear? नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग गामा का रेशियोस निकालेंगे, जीएस, बाकी सब रिलेशनशिप्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले ये सब समझ दो, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। void ratio means volume of voids divided by volume of solid. Porosity means volume of voids to the total volume of soil sample. Degree of saturation means total volume of voids contain water divided by volume of voids. Water content means weight of water divided by weight of solids. Dry unit weight means weight of soil solids divided by total volume of soil. Unit weight or unit weight of soil bulk density, that is called as gamma. Gamma equals to total weight of solid to the total volume of soil. Saturated unit weight means weight of soil solids plus water divided by total volume of soil. Okay. Okay, good. नेक्स्ट लेक्चर में ये पूछने वाला हूँ, डाउट सेशन में कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, डाउट सेशन कितने बजे स्टार्ट करना है? किसी को डाउट सेशन रखा है किसी ने? तो मैं 2 बजे डाउट सेशन स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट 2 o'clock। मैं मैसेज ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके।